الرحمن الرحیم۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس کو جس نے کئی دن اور چلنا تھا، اچانک اسپیکر نے ختم کر دیا، اور جس طرح چور بھاگتے ہیں اس طرح قومی اسمبلی کا اسپیکر ڈائی سے بھاگا۔ کل کی جو شکست اس حکومت کو ہوئی ہے، حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ کل جو وزراء 40 جو وزراء ہیں وہ عمران بابا کو گھر چھوڑ کر ایک سٹیج پر اکٹھے ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے کہا جی ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ نہ ان کو قانون کا پتہ ہے، نہ ان کو آئین کا پتہ ہے۔ وہاں یہ کہہ کر چلے گئے کہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور اس کے 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے تو اسپیکر جو ہے وہ ڈائس چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ آج پاکستان کی قومی اسمبلی اور پاکستان کی حکومت کی حالت ہے۔ کل کیا ہوا پورے پاکستان نے دیکھ لیا۔ اس حکومت کا وزیر خزانہ امیدوار تھا، اس کی کیمپین، الیکشن کیمپین وزیراعظم نے خود چلائی، ہر ایم این اے کو ملا، اربوں کی اسکیموں کے وعدے کیے، ہر قسم کی دھونس اور دھاندلی کی کوشش کی۔ اس کے باوجود بھی حکومت کو شکست فاش ہوئی، اور یہ بات عیاں ہے، یہ حقیقت ہے کہ عمران خان نیازی اس ہاؤس کا اعتماد کھو چکا ہے۔ اس کی وہ لوگ جو حکومتی بینچوں پر بیٹھتے ہیں، 17 افراد نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ حکومت کے پاس آج اکثریت نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اب اس کا صرف ایک حل ہے، اور وہ نئے الیکشن میں ہے۔ اگر پاکستان کو اس سیاسی بحران سے نکالنا ہے، اس معاشی بحران سے نکالنا ہے، تو واحد حل ہے کہ ایک نیا الیکشن ہو، پاکستان کے عوام کو اپنی رائے کے استعمال کا پھر موقع ملے، اور وہ فیصلہ کریں کہ اس ملک میں کس کی حکومت ہوگی۔ یہ ہمارا کھلا چیلنج ہے عمران خان کو۔ میدان بھی حاضر ہے۔ اب یہاں پر جعلی اعتماد کا ووٹ لینے کا، اسمبلیوں کو اس طرح دھونس دھاندلی سے چلانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 2.5 سال میں اس حکومت کی جو کارکردگی رہی ہے پورے پاکستان نے دیکھی ہے۔ اس حکومت کی ناکامی سے پورا پاکستان پریشان ہے۔ آج اس ملک میں واحد راستہ ہے کہ نئے الیکشن ہو اور پاکستان کے عوام پھر ایک نئی حکومت منتخب کریں جو ملک کے مسائل حل کر سکے۔ 2018 کا چوری شدہ الیکشن پاکستان کو صرف مشکل دے سکا، پاکستان کے عوام کو صرف مہنگائی دے سکا۔ آج اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج صرف ایک راستہ ہے، اور وہ نئے الیکشن میں ہے۔ جتنی جلدی یہ کریں گے یہ سیاسی بحران ختم ہوگا، ورنہ نہ ملک چلے گا، نہ یہ پارلیمان چلے گی، نہ معیشت چلے گی، اور عوام کو مزید مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ ہے، یہ پاکستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے، اور حکومتی بینچوں کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے، جس کا اظہار انہوں نے کل کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل حکومت کو قومی اسمبلی میں جو شکست فاش ہوئی ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اس خفت کو مٹانے کے لیے، اس بے عزتی کو مٹانے کے لیے کئی قسم کی منصوبہ سازی کی جا رہی ہے، کئی طریقے گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے پاکستان میں وہ ضمنی انتخابات ہوں یا سینٹ کے انتخابات ہوں، اور خاص طور پہ قومی اسمبلی میں جس کے لیڈر آف دی ہاؤس جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان ہے، اس میں اس طرح شکست کھا جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ جو بھی تعویلیں پیش کریں گے،
जो कुछ भी हीले बहाने करेंगे, जो कुछ भी तौर तरीके करने की कोशिश करेंगे, वो सब फजूल है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने उन पर अदम एतमाद कर दिया है। और देखें, जो शख्स ये कहा करता था कि अगर 10 आदमी भी खड़े होकर गो इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं हुकूमत छोड़ के घर चला जाऊंगा, आज तो कौमी असम्बली के 17 उनकी अपनी पार्टी के मेंबरान ने गो इमरान गो का नारा लगा दिया है। और इसके बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि हुकूमत जो है वो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से PDM ने डिमांड किया है कि हुकूमत को फ़ौरन मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, उसके अलावा कोई जो है वो बाइज़्ज़त तरीका नहीं है, कोई ऑनरेबल तरीका नहीं है। ये कह देना कि मैं चूहों की तरह हुकूमत नहीं करना चाहता, तो देखिए अगर आप चूहों की तरह नहीं करना चाहते तो फिर शेरों का तो एक ही तरीका है कि आप आएँ कौम के सामने, इस्तीफ़ा दें और मैदान में जाकर पाकिस्तान के अवाम के मैदान में जाएं और वहाँ अपने आप को पेश करें। वो एक तरीका है जो चूहों का नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई भी तावील पेश की, कोई भी तौर तरीका अपनाने की कोशिश की, कोई रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की, तो फिर पाकिस्तान के अवाम इतने सादा नहीं है, वो समझेंगे कि आप चूहों की तरह हुकूमत करना चाहेंगे, तो पाकिस्तान के अवाम जो है अब चूहों की हुकूमत जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई, बेरोज़गारी ने पाकिस्तान के अवाम का बुरा हाल कर दिया। तारीख़ में इतनी महंगाई और बेरोज़गारी नहीं हुई, इतनी बेबरकती नहीं हुई। आज जाकर पता करें कि एक आम आदमी का क्या हाल है। बिजली के बिल ने, गैस के बिल ने, रोज़मर्रा खाने पीने की अशिया कहाँ पहुँची हुई, हर चीज़ उसकी दस्तरस से बाहर। हर तबका जो है वो सरापा एहतजाज है और वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मैं चूहों की तरह हुकूमत नहीं करना चाहता। कल की शिकस्त के बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता, सिर्फ एक रास्ता है उनके लिए कि वो पाकिस्तान के अवाम के पास जाएं और स्टेप डाउन करें। He must step down. He has to resign and that is the honorable way. और उसके अलावा कोई हीला बहाना जो है, मैं समझता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि PDM के कैंडिडेट थे, उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है उसने इस बात पर मुहर सबत कर दी है कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और पाकिस्तान के अवाम का एतमाद खो चुकी है। इसलिए हमारा ये जो है वो डिमांड है PDM की कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों और पूरी हुकूमत मुस्ताफ़ी होकर जो है वो नए इंतखाबात कराए जाएँ। शुक्रिया। अब यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे सीनियर लीडर्स ने बात की है, बिल्कुल ये हकीकत है। इन पे पूरी कौम का एतमाद नहीं था, लेकिन कल के इलेक्शन के बाद तो इनके अपनी हुकूमती अराकीन ने भी बदएतमादी का सबूत दिया है और अभी कोई इनके पास जवाज़ नहीं है यहाँ पे हुकूमत करने का। इन्होंने आते ही जिस तरह गैर यकीनी सूरत हाल, जिस तरह अनसर्टेनिटी पैदा की और जमहूरियत पे जमूद तारी करने की कोशिश की, कल के PDM के फ़ैसले से, PDM की कोशिशों से, हमारे वोट से और पूरी आवाम की, पूरी कौम की दुआओं से हम सुरखरू है और हमारा बयानिया जो है वो ताकतवर हो गया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह इन्होंने पूरी मईशत को तबाह करके रख दिया था। पूरे यहाँ पे पाकिस्तान के तमाम वो इदारे कि जिसकी तरफ हमारी निगाहें थी, उनको गैर ज़रूरी रेफरेंसेस में जकड़े रखा, उनको मसरूफ़ रखा और उसका आपने देखा कि क्या नतीजा निकला। हमारा जो PDM का नारा था वो आज आप सबके सामने है। पूरी आवाम, पूरी कौम खुशियाँ मना रही हैं और हमारा भी यही आगे यही लाए अमल है कि अब ये हुकूमत जो है अब इस काम को ख़त्म करें, वाइंड अप करें। ये बदएतमादी की फ़िज़ा जो है इसको अब अपनी ये सीट्स को छोड़ दें और कानूनी और आइनी रास्ता भी यही है कि अब इस पे मज़ीद जो है ये ना यहाँ पे मुस्तहकम रहे और इस अवाम की जान छोड़े और इस कौमी असम्बली जो कि एक आइनी इदारा है और जिसका एक वक़ार है उसको मजरू किया जा रहा है। इस तरह के अपने ही फ़ैसले यहाँ पे ये मुसल्लत किए जा रहे हैं
तो इसको छोड़े कि ये जो है एक अवाम की रिफा के लिए जो हम सब तमाम पार्टियां यहाँ पे क्रॉस द पार्टी यहाँ पे हमारा एक ही मौक़िफ़ है, उसकी तरफ आए और इसकी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इस असम्बली को जो है स्मूथली उन लोगों के हवाले करे जो कि सही तरीके से जमहूरियत को समझते हैं, जमहूरियत की रूह को समझते हैं, ताकि आने वाले जो मसाइल हैं कौम के वो हल किए जा सकें और आवाम जो है कोई खुशी की राह देख ले, बजाय ये कि जो आज के ये हालात इनके सामने है। तो ये अदम एतमाद इन पे हो चुका है, अब कोई जवाब पैदा नहीं है, मज़ीद वक्त ज़ाया न करें और ये वापस लौट दें। मैं सिर्फ एक दो जुमले बोलूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पीडीएम के कायदीन ने तकरीबन तमाम बातें तफसील से कर दी, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आवाम ने तो पहले ही अपना फ़ैसला सुना दिया था, लेकिन जिन लोगों के सहारे, जिन बैसाखियों के सहारे वो यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, उन बैसाखियों की मदद के बावजूद, उनके सेलेक्टर्स की हिमायत के बावजूद, उनकी सेलेक्टेड असम्बली ने कल उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो मेरे ख्याल में अब तो कोई जवाज़ बाकी रह ही नहीं जाती यहाँ पर हुकूमत करने की, तो उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। और एक बात मैं और कहूँगा कि मुल्क चलाने से पहले वोट डालना सीख लें। बहुत अदम एतमाद हो चुका है, एतमाद का आइन में गुंजाइश ही नहीं है। ना इस वज़ीर-ए-आज़म को आइन आता है, ना कानून आता है, ना असेंबली की रवायत आती है, ना वोट डालना आता है। जो आदमी खुद अपने उम्मीदवार को वोट ना डाल सका, उसे आप क्या तवक्को रखते हैं? तो मेरी इनसे गुजारिश है कि मैदान हाजिर है, मुकाबला करना आ जाओ, तशरीफ़ लाओ, तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया है, अब होगा मुकाबला मैदान में। पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे, कोई और नहीं करेगा।